Next topic is vector product of two vectors. The vector or cross product of two vectors is defined as the vector whose magnitude is equal to the product of magnitudes of two vectors and sine of the angle between them, whose direction is perpendicular to the plane of two vectors and is given by right hand rule. Let us consider we have two vectors, A vector and B vector. Let theta is angle between these two vectors. Then the cross product of these two vectors is A vector cross B vector is equal to magnitude of A vector, magnitude of B vector, sine theta n cap. Here n cap represents a unit vector which is perpendicular to the plane of A vector and B vector, and the direction of A vector cross B vector is same as that of this unit vector n cap. Next is rules for finding out the direction of A vector cross B vector. Number 1 rule is right-handed screw rule. If a right-handed screw is placed with its axis perpendicular to the plane of vectors A vector and B vector and is rotated from A vector to B vector through the smaller angle, then the direction in which the screw advances give the direction of A vector cross B vector. So, according to this right-handed screw rule, if we placed a screw perpendicular to plane of vectors A vector and B vector, अगर हम जो ये screw है इसको हम perpendicularly रख रहे हैं to the plane of A vector and B vector, और जब हम इस स्क्रू को रोटेट कर रहे हैं फ्रॉम वेक्टर A टू वेक्टर B, तो देखो सपोज कि ये स्क्रू है, ठीक है, तो इसको हम रोटेट करें, अब A से B तक जा रहा है, तो A से B तक जो इसकी जो रोटेशन को हमने रिप्रेजेंट थीटा के साथ किया और यहाँ पे एरो देखो रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्क्रू जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, ठीक है। सो A टू B, सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स ऐसे, ठीक है। जब आप स्क्रू को ऐसे A से B ऐसे रोटेट करोगे तो स्क्रू एडवांस होगा जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की, ठीक है। तो जैसे हम स्क्रू को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जैसे ऐसे रोटेट करें हैं तो स्क्रू ऐसे हमारे पास एडवांस होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? Now next rule is right hand thumb rule. Curl the fingers of right hand in such a way that they point in the direction of rotation from the vector A vector to B vector through the smaller angle. Then the stretched thumb points in the direction of A vector cross B vector. The next rule for finding out the direction of A cross B vector is right hand thumb rule. According to this rule, curl the finger of right hand in such a way that they point in the direction of rotation of vector A to B. अब देखो A वेक्टर टू B, जैसे A वेक्टर टू B कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने जो ये जो फिंगर कर्ल की हैं ये भी कौन सी डायरेक्शन में मैंने की है एंटी क्लॉकवाइज, और जो मेरा थंब है, थंब जो है इट इज़ पॉइंटेड in the direction of A vector cross B vector like this, ठीक है। Next topic is geometrical interpretation of vector product. Consider two vectors A vector and B vector are represented by the sides OP and OQ of a parallelogram OP RQ. So OPRQ represents a parallelogram. Here A vector is represented by the side OP of a parallelogram and B vector is represented by the side OQ of a parallelogram.
So let these two vectors A vector and B vector are inclined at an angle theta. So the angle POQ is equal to theta. So draw QN perpendicular on OP. So यहाँ पे हमने QN perpendicular ड्रॉ किया यहाँ पे OP साइड पे ऑफ अ पैलोग्राम के. So the magnitude of A vector cross B vector is equal to AB sin theta. Students, please note that if we take A vector cross B vector in vector form, it is equal to magnitude of A vector, magnitude of B vector sin theta into n cap. Here n cap represents the direction of this vector. Here vector is A vector cross B vector. So n cap इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताता है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर ऑफ टू वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर. सो यहाँ पे मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया. जब मैंने यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लूँगी तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और हमें पता है कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1. सो हमारे पास ये टर्म बचेगी AB साइन थीटा. ठीक है. एंड A, the value of A is OP and the value of B is OQ sin theta. ठीक है. Take this equation number 1. Now in triangle QON sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse, which is equal to, here perpendicular is NQ, hypotenuse is OP, and the value of OB is in magnitude is B. OQ, the value of OQ is equal to B vector. So यहाँ पे OQ की जो वैल्यू है that is B vector. So OQ is equal to B in magnitude. So sin theta is equal to NQ upon OQ. So sin theta, the value of NQ is OQ sin theta. ठीक है. So take this equation number 2. So put this value NQ is equal to OQ sin theta. Here we get magnitude of A vector cross B vector is equal to OP into NQ. Take this equation number 3. So here OP into NQ represents the area of parallelogram OPRQ. So ये बेस हो गया, ये इसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया. ठीक है. हाइट जो यहाँ पे एल्टीट्यूड है ये परपेंडिकुलर है. सो ये हो गया. ठीक है. सो नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस इक्वेशन नंबर 3 by 2. ठीक है. सो हेयर दिस टर्म रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. कौन सी ट्राइंगल? पहले हम यहाँ से, मैंने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, P को Q के साथ ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई दैट इज़ OQP. सो ये जो मेरे पास टर्म आई है, दिस टर्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ विच ट्राइंगल OQP. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ A vector cross B vector is equal to twice of area of triangle OQP. So hence the magnitude of vector product of two vectors is equal to area of parallelogram whose two sides are represented by two vectors. And second, it depends upon and this magnitude of A vector cross B vector is equal to twice the area of triangle whose two sides are represented by two vectors, vector A and vector B. Next is cross product is anti-commutative. So इसके लिए हमने क्या लिया कि मेरे पास A वेक्टर और B वेक्टर मैंने लिए, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या लिया मैंने, थीटा. अब यहाँ से A से B तक जो रोटेशन हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है. ठीक है. तो डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी इन दोनों वेक्टर्स की, उसकी जो उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल और बाय अप्लाइंग राइट हैंडेड स्क्रू रूल. सो राइट हैंडेड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग अब डायरेक्शन यहाँ से
ए से बी तक हमारे पास जो वेक्टर है उसकी जो रोटेशन हो रही है, तो हम ऐसे रोटेशन हो रही है हमारे पास, ऐसे रोटेशन होगी तो स्क्रू हमारा कहाँ जाएगा, अपवर्ड, एडवांसेस अपवर्ड, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो हमारे पास इस डायरेक्शन में हमारे पास वैल्यू आ गई वेक्टर की, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, और लेट अस सपोज कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ठीक है। और मान लो कि इस वेक्टर में जो सी वेक्टर लिया, इस डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट वेक्टर है सी कैप, ठीक है। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा सी कैप। हेयर सी कैप रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड अपवर्ड, अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को किसके बराबर हमने लिया, सी वेक्टर के, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास अगर रोटेशन हो रही है फ्रॉम बी टू सी, कैसे हो रही है ये रोटेशन, क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम स्क्रू रखेंगे ऐसे, तो उसकी रोटेशन चेक करो, बी टू चेक करो, बी टू ए जा रही है, तो रोटेशन इज़ लाइक दिस। तो हमारा जो वेक्टर है ऐसे हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेगा तो स्क्रू हमारा इस डायरेक्शन में एडवांस करेगा, मीन्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैसे रोटेशन हो रही है, क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो हमारे पास ये डाउनवर्ड आएगा, जो हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है इन दोनों वेक्टर की, क्लियर है, ठीक है। सो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। सो और इसको हम राइट हैंड जो थंब रूल है उसकी हेल्प से भी इसकी डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो मान लो कि इस डायरेक्शन में मेरे पास जो यूनिट वेक्टर जा रहा है वो है डी कैप, क्लियर है। सो डी कैप रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। तो डी कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है। सो हमें इन दोनों फिगर से ये क्लियर है कि जो डी कैप है इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सी कैप। सी कैप अगर अपवर्ड जा रहा है तो डी कैप डाउनवर्ड जा रहा है, सो वी कैन राइट डी कैप इज इक्वल टू माइनस सी कैप, क्लियर। सो एज वी नो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा सी कैप। सो पुट द वैल्यू ऑफ सी कैप। सो यहाँ से अगर हम सी कैप की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस डी कैप आएगी, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे फिल कर दी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू माइनस डी कैप। सो हमारे पास क्या बन गया, माइनस साइन आगे आ गया, ए बी साइन थीटा डी कैप। सो ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं। सो हमारे पास क्या बन गया, बी ए साइन थीटा डी कैप। सो बी ए साइन थीटा डी कैप दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सो हेयर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सो हैंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सो इसके आगे नेगेटिव साइन आ गया, मतलब अगर हम इन दोनों वेक्टर को इंटरचेंज करते हैं, इनकी जब हम इन दोनों की प्रोडक्ट ले रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सी है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाता है। जबकि हम जब डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, उसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं आया। सो दैट मीन के स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, बट इन क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया, सो द क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेट अस कंसिडर वी हैव टू वेक्टर्स, a vector and b vector. So a vector in the component form in 3-dimensional can be written as a vector is equal to axi cap plus ayj cap plus azk cap, and the b vector can be written as bxi cap plus byj cap plus bzk cap, ठीक है। The cross product of these two vector a vector cross b vector is equal to, इसका हमने प्रूफ नहीं करना, इसका लास्ट जो रिज़ल्ट है हमने इसको ध्यान में रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट हम इसकी कैसे ले सकते हैं। तो बच्चे इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इसमें मैंने क्या रखा, आई कैप, फर्स्ट जो इसकी रो है उसमें मैंने रखा आई कैप जे कैप के कैप, जो फर्स्ट रो है। तो जो उसकी नेक्स्ट जो रो है उसमें मैंने क्या लिखना है कि जो आई कैप फर्स्ट जो वेक्टर है, पहले हमने इसको कंसिडर करना है, जो हमने यहाँ पे पहले नंबर पे रखा है। तो यहाँ पे उसके कंपोनेंट्स हम लिखेंगे। व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ आई कैप
in case of a vector, here it is ax. Component of j cap in case of a vector is ay. Component of k cap in case of a vector is az. Similarly in second row हम b vector की बात करेंगे. So now the component of I cap in case of b vector is bx. The component of j cap in case of b vector is by. The component of k cap in case of b vector is bz. So here it is bz. So this is very important. So by using this formula we can find out the cross product of a vector with b vector. ठीक है, तो हम क्वेश्चन ये है कि इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व हो सकती है कि जब हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे.